Your mic is off, ma'am. Kindly switch on your mic also. Online it is showing your mic is off. Hello. Thank you, Susan ma'am. So today I'm going to talk about the ICT tools for effective teaching learning. क्या हम ये स्पीकर बंद कर सकते? Okay. So let's take a look over the contents of the presentation. First, I'll be talking about the introduction, why we have chosen this topic, and what is the active and passive learning, and what is the basic difference between active and passive learning. What is the importance of before the COVID hit us, we were using traditional methods, that was the chalk and talk. We were using the chalk and board in the classroom, and most of the time the teacher approaches to write the things and to convey the message in terms of the voice. But as the technology we were using in the pre-COVID phase, we were just using the email and the WhatsApp, but we were more lean towards the traditional methods that was available in the pre-COVID phase. We had the technology, but the technology was very less. Most of the teachers were using only the WhatsApp and email for contacting the students or among their other fellow members. Pre-COVID, video conferencing tools were also existing, but those were limited to the business only. But during the COVID, we faced a very critical situation.
because we were struggling at our home. Students and teacher both were struggling. The technology was existing, but we were not able to use them in an effective way. Teachers started using the video conferencing tools when the COVID hit us. And we were taking we were taking our class through Zoom or Google Meet. But that was not very effective because that was the first time when the teacher and student both were at their home and they were not in the physical form in the classroom. During the first COVID phase, the technology was being developed and the effective teaching learning process started. After the post-COVID phase, most of the students wanted to stay at home only because this was the basic effect that has came to our life after COVID. But during the COVID phase, the technology was being advanced in the terms of the learning management systems, digital tools, collaboration, which was in the online phase, and the educational apps was developed during the COVID phase. We were using the hybrid and blended mode of learning, and that was more flexible to the students and their learning preferences. What we were doing during the COVID was the online assessment and evaluation, and still most of the methods have now been taken on the online mode, and online assessment and evaluation methods and portals have been developed. The biggest change that has been brought to the education system is the artificial intelligence and the AR and VR technology. Various tools and professional developments of the educators have also been evolved. Student collaboration and communication platforms have been evolved post-COVID. And the access to the information is now the biggest tool to the student. Now, when we were talking about the active and passive learning or the effective teaching learning method, since the teaching is not a one-way process, it is a two-way process. One on the other side of the chair and the second, the other side of the chair. Means in front of the student, there are many, in front of the teacher, there are many students. And how the teacher is delivering his or her lecture is very valuable in one student's life. So teaching is categorized, the teaching learning process is categorized in two methods. One is the active one and second is the passive one. In the passive teaching learning process, what happens? The teacher delivers the lecture and students listen to the lecture. Student goes back to the home, he do all the assignments that given to the student by all the teachers, and he then came back to the college and submitted to the teacher. So this is what the passive learning, in which the involvement of the student is very less. Only the teacher is teaching and the student is learning. That's it. And we can say that whatever instruction the teacher gives to the students in the classroom, the students perform in the same way. Means that it is an instruction-based learning. But when we move to the active teaching learning, in the active teaching learning, the students' participation is increased. The participation will provide them, will enhance their critical thinking skills and problem-solving skills. The active learning involves more and more discussions, group works, hands-on activities, and projects, which will actively engage the students in the learning process. When we talk about the passive teaching learning, the passive teaching learning is the instructor-centered learning teaching process. But when we move to the active teaching learning, the process is the learner-centric. Means that whatever method is adopted in the classroom is based on how the learner will understand and how the learner will perform outside the classroom and inside the classroom. Means if you have given a problem to a group of students, every student will participate in that group. But if you go to the passive learning, what will happen? Only the teacher will instruct the students, and the teacher will instruct the students that do this question. You can perform this, you can solve this question in this way.
Those are just the instruction. So if we, in a broader way, we can say that in passive learning, you are giving the knowledge to the student, but the knowledge is giving out, knowledge is taking out of the brain because the student is not involved. But if you go for the active learning, the student is understanding, he is performing some sort of projects, group activities, or experiments, and this learning will be lifelong. Because since if you go for the driving and you are asking a person to drive by giving him instruction, it will not be possible. Until unless you give him bike, he will not be able to ride. So you need some experiment. And when you do experiment and when you talk about that experiment with the other peer members, in that case, the knowledge will be lifelong. So active learning gives you lifelong learning, whereas passive learning gives you momentary or instantaneous learning. Now, it is very difficult for a teacher to incorporate the active learning in the classroom because we have a structured curriculum. And in that structured curriculum, there is not very much flexibility to a teacher. So you can incorporate what you want to do in the active learning because active learning has so many methods. One method I have already discussed, that is the group discussions. You have to give an assignment to the students and divide the students into groups. And then the students are asked to discuss the assignment they have given to. And among their peers, they will discuss about the assignment. So this is a one activity. But in the another activity, the approach will be different. And the students' response will be different. Like if you have given a group of students a project, suppose you have given them a physics project that you have to design a equipment which is demonstrating the centrifugal force. But the condition is that you cannot use your hand. You have to use the electrical components to rotate the device. In that case, what will happen? The students will go there at the places and they will search what kind of electric components they can use in making that device. So these are certain types of methods or the approaches that can be incorporated in the active learning. There are other methods also like question posing. Questions are very important in one's life. If you don't ask question, you cannot learn or you cannot correct your mistakes. So question, if there are 60 students in a classroom and if every student asks a question, a teacher will get 60 questions to answer. And in this way, the instructor will improve his knowledge and the learner will also understand what is the solution for his answer. So these approaches are very difficult to implement in the classroom because not every student will give you a perfect response to the approach you are incorporating in the classroom, because most of these students are being taught traditionally from their childhood. And when they are brought into different activity, they don't respond in a good way. So it is the responsibility of the teacher to encourage and to motivate the students to participate more and more in the active learning techniques. Because because with the help of the active learning techniques, the knowledge will be lifelong. And if you will go for the passive learning, it will be instructor-based learning and it will not give you a fruitful result in long terms. So let's move over the ICT in education. I have incorporated ICT in education topic to my presentation because I am more interested in the active learnings. So if you want to incorporate in active learning, it is very difficult to perform all the activities in the classroom. You also have to go home. Students also have to go home. We cannot be available 24/7. But there are ICT tools with the help of which you can be available to your students 24/7. And this can only be achieved with the help of ICT tools and platforms only. So if we talk about what are the benefits of using the ICT in the education, is that ICT brings inclusion. It promotes higher order thinking skills. It enhances and motivates subject learning.
It develops the ICT literacy and capabilities. It improves the communication and collaboration. It improves the teaching and the learning experience of the learner. It increases the students' engagement and participation. Best practices for classroom integration and access to a wide range of education resources. All these points highlight or indicate to only one point, that is the active learning. Because in the active learning, students' participation is important. If the student is not participating in the teaching learning process, the teaching learning process will be only one way, and that will not be fruitful. As we are moving towards the NEP, and the NEP has been implemented and is going to be implemented in other states also. So it is very important to understand the teachers that ICT is the future tool. And if you fail to incorporate more and more ICT in education, it will be very difficult to engage your students. Because pre-COVID, the situation was different. And after COVID, the situation is entirely different. Pre-COVID, the primary or junior high school student was not using the mobile phone to that extent, or was not investing up to 4 hours to the education on the mobile phone or the YouTube or other platforms. But now a very small kid is also using a mobile phone, and he has access or she has access to a lot of content that is available on internet. So if a teacher will recommend good and appropriate content to the students, in that case, the learning will be very good. And if your student will start searching here and there, and they are exposed to some wrong content that is available on the internet, in that case, the learning will be inappropriate, and the learning will not be up to the mark. So it is very important for a teacher to incorporate all the information. He should be aware about all the information or content available on the internet. Rest, the higher order thinking skill. As we know that when we read more and more, we are exposed to a lot of content that we were not knowing, and as long as we read much, we will get a lot of information about what is happening around the world. So it will improve your higher order thinking skills. And when a teacher is improving his higher order thinking skills, it will be imparted to its students. It enhances and motivates subject learning. Suppose if we are using one platform for virtual labs, and if we move to some other website, some other university website that is another country, in that case, what will happen? We'll be exposed to their content also. We will be able to understand what teaching methodologies, what platforms, or what kind of labs they are using. So it will enhances and motivates your to the subject learning. As far as the pre-COVID phase and post-COVID phase, if we compare, the ICT literacy before the pre-COVID phase was very less, and after the pre-COVID phase, it is improved. But it is still in improvising phase, because most of the teachers are still not able to cope up with the technology. So it is very important to a teacher to use these technology and to use these ICT tools available on the internet effectively, so that he or she can improvise his ICT literacy and capabilities. As far as the learning experience is concerned, this can be understood by one example. In the pre-COVID phase, no student was asking a teacher that, please suggest to me some video which you have seen, a video that you have seen and that is good in that subject. But nowadays, students are coming and they are asking the teachers that provide us some sort of videos that are good in content. So students are more and more engaged in on the online platforms, and they are coming less to the classroom, because this is the biggest impact of the classroom teaching after COVID phase. So student engagement and participation can only be gained by a teacher when he or she is capable of competing with the
available videos or available content in the market. So you have to improvise yourself to get more and more student engagement. Now, best practices for classroom integration, as I have already suggested, that active learning has a variety of methods available, and you can use those methods in your classroom. But the thing is that when you apply those methods in the classroom, it is very difficult to cope up with the current curriculum structure. So you have to go online to integrate those methods in your classroom teaching, because you have to be available to the students after the classroom also. So you have to use the ICT tools. Other methods are not available, because when you are out of the classroom, you are not able to understand what the other student is doing. What your student is doing at home, you are not able to see it. When he comes back to your classroom, only then you can assess his or her knowledge. So if you want to assess the knowledge of the students, or the learning has been imparted to the student, you have to be available to the students after the classroom also. Access to a wide range of educational resources, and this I have already discussed. So let's move over the ChatGPT. Why I have included the ChatGPT? Because most of the students are using ChatGPT nowadays, and they are using it for solving their assignments, for creating their projects, and getting some information from the ChatGPT. But if a student is using, his teacher must be aware what he is doing on ChatGPT. Every teacher at least once used the ChatGPT, and he or she must understand, a teacher must understand what is the purpose of creating a ChatGPT. A ChatGPT is not a search engine. It has variety of content, and it is generating some conversation with the end user. And what conversation is delivered to the end user, and it is appropriate or not, it is up to the user only. But when you search on the Google, it display a lot of content that has been indexed on the Google. And then you select one resource that has been provided by your search engine, and you go through it properly. But when you use the ChatGPT, it will give you a conversation type of content. So let's understand what the ChatGPT is doing and how we can use the ChatGPT. And we also have to be one step ahead of our student, because when you give assignment to the student, he or she might be using the ChatGPT, and you should understand, if you provide that question to your student, what the student answer will be given to you when he will be giving you assignment back. So it is the challenge for a teacher to create assignments or giving the project to their students now. So let's move and learn what the ChatGPT can do and how we can use it. So first, understand what the ChatGPT is. ChatGPT is the chat generative pre-trained transformer. It is a natural language processing tool, and it can deliver a human-like conversation and much more. The chatbot. Chatbot was earlier available, but ChatGPT features are far better than any chatbot. ChatGPT was created by OpenAI, which is a AI research company, artificial intelligence research company, and it was released on 30th November 2022. As I've already discussed, what is the difference between ChatGPT and a search engine? ChatGPT is a chatbot which provides you human-like conversation, but a search engine will provide you the pages, the indexed pages relevant to the question asked. So how the ChatGPT works? ChatGPT works in two ways. First, understand that it is a language model which is pre-trained and it is fine-tuned. Fine-tuned by supervised learning and reinforcement learning. Supervised learning means that you have given the content to the model and it is now understanding the content and it is training itself. And reinforcement learning means when you search something and when it provides you some answer and you give thumbs up feedback, it means that the question you asked
and the given solution is compatible, and as per the suggestion given by the ChatGPT, you are agreeing that the solution given is appropriate and you are giving a thumbs up. So it is a feedback. So what feedback you give, ChatGPT learn from that feedback, and what content is given to the ChatGPT earlier, it is the supervised learning. ठीक है. तो ChatGPT का जैसे मैंने आपको बता ही दिया कि सुपरवाइज लर्निंग और रेनफोर्समेंट लर्निंग इस तरह से जो आपका मॉडल है, जो चैट जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर है, ये अंडरस्टैंड कर रहा है, अपने आप को ट्यून कर रहा है और आपको रिजल्ट्स दे रहा है. लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके पास सारे के सारे आंसर्स अवेलेबल हैं, इसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं. और इसकी लिमिटेशंस क्या हैं? पहली बात, ये आपको ह्यूमन लाइक कॉन्वर्जेशंस प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं ह्यूमन इमोशंस और ह्यूमन स्पीच बहुत कॉम्प्लेक्स है. तो ये उतनी अच्छे से उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को, किसी भी लैंग्वेज की कॉम्प्लेक्सिटी को अंडरस्टैंड कभी कभी नहीं कर पाता. जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि 2021 से पहले तक के सारे डेटा के साथ चैट जीपीटी को ट्रेन कर दिया गया है. इट हैज बीन प्री ट्रेन्ड अप टू दी 2021. लेकिन 2021 का कोई भी डेटा, अगर आप कोई भी क्वेश्चन 2021 के बाद से रिलेटेड पूछते हैं तो हो सकता है वो इंफॉर्मेशन सही ना हो. दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब आप कुछ सर्च करते हैं तो ये आपको सॉल्यूशन तो प्रोवाइड करता है, लेकिन ये आपको साइटेशन प्रोवाइड नहीं करता कि इसने वो कंटेंट कहाँ से रिट्रीव किया है. जैसे कि गूगल इंडेक्स, जब हम गूगल सर्च इंजन में कुछ टाइप करते हैं तो वहां पर पेजेस इंडेक्स्ड होते हैं और हमें पता होता है कि हम इस पर्टिकुलर वेबसाइट से, इस पर्टिकुलर रिसर्च पेपर से, इस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग से अपने डेटा को रिट्रीव कर रहे हैं. लेकिन जब हम चैट जीपीटी को कुछ प्रॉब्लम देते हैं और वो हमें उसका सोल्यूशन देता है तो वो कहीं पर भी कोई साइटेशन नहीं होता. इट मीन्स कि आपको एक समरी मिल गई है और समरी चैट जीपीटी ने खुद से एक ह्यूमन लाइक कन्वर्सेशन की तरह दी है. तो ये कुछ बेसिक लिमिटेशंस और भी बहुत सारी हैं, जैसे कि प्राइवेसी का भी एक बहुत बड़ा इशू है कि कई बार अभी कुछ समय पहले इस तरह का एक इंसिडेंट हुआ था जिसके अंदर चैट जीपीटी का सर्च में कुछ लोगों ने जो सर्च नहीं किया था वो भी क्वेश्चंस डिस्प्ले हो रहे थे, लेकिन वो एक बग था, उसको थोड़े टाइम बाद फिक्स कर दिया गया. तो प्राइवेसी कंसर्न्स भी वहां पर हैं, लेकिन जो बेसिक लिमिटेशंस हैं जो एक एंड यूजर के लिए इंपॉर्टेंट हैं, जो सिर्फ और सिर्फ अपने असाइनमेंट, प्रोजेक्ट या कुछ बहुत जनरल चीजें सर्च कर रहा है, तो ये उसकी बेसिक लिमिटेशंस हैं. इसके अलावा अगर हम इसके कंसर्न्स की बात करें तो कंसर्न्स में पहला है प्लैगियरिज्म, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी रिसर्च का. जैसा मैंने आपको बताया कि ये समरी प्रोवाइड करता है और आपको ये नहीं बताता कि इसका सोर्स क्या है, इसका साइटेशन क्या है, तो वहां पर डेटा के प्लैगियराइज होने के, टेक्स्ट के प्लैगियराइज होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं. दूसरी बात, बायस इन ट्रेनिंग. मान लीजिए कि चैट जीपीटी को ट्रेन करते वक्त किसी पर्टिकुलर तरह के डेटा के साथ ट्रेन कर दिया गया, तो जो भी कंटेंट आपको आंसर में मिलेगा वो उस ट्रेनिंग के बेसिस पर भी होगा. If it is trained in a wrong way, it will provide some inappropriate content which must not be come in the public domain. तो bias in the training data, ये एक बहुत important aspect है, इसका concern है. Replacing jobs and human interactions. ये बात सही है कि जैसे जैसे AI इवॉल्व हो रहा है जॉब्स पर फर्क पड़ेगा, लेकिन जॉब्स पर फर्क पड़ने का मतलब ये नहीं कि जॉब्स ही खत्म हो जाएंगे. जॉब्स विल बी क्रिएटेड, other jobs will be created, but कोई ऐसा व्यक्ति जो AI को किस तरह यूज करना जानता है, वो किस तरह यूज करना है, कहाँ यूज करना है, अगर ये जानता है तो वो आपका जॉब ले सकता है. तो इसका मतलब ये नहीं है कि AI के आने से जॉब्स खत्म हो जाएंगे, लेकिन हाँ आपके जॉब जाने की उम्मीद है. प्राइवेसी इश्यूज, जैसा कि मैंने बताया, प्राइवेसी जो है वो सबसे बड़ा कंसर्न है जब हम चैट जीपीटी को इस्तेमाल करते हैं. और ये चैट जीपीटी के जो मैनुअल है उसमें भी है कि आप अपने क्वेश्चंस किसी को भी किसी के साथ भी शेयर ना करें, जो भी आप कंटेंट आप सर्च करें उसको किसी के साथ शेयर ना करें. तो दीज आर द लिमिटेशंस एंड कंसर्न्स एसोसिएटेड विद द चैट जीपीटी. तो मैं अब आपको चैट जीपीटी को किस तरह यूज करना है ये बताऊंगी और चैट जीपीटी किस तरह रिजल्ट देता है और हम किस तरह उसमें
क्वेश्चंस को फ्रेज कर सकते हैं, ये अभी हम थोड़ी देर में देखने वाले हैं। पहले मैं आपको बेसिक एक छोटा सा समरी बता देती हूँ कि किस तरह से हम चैट जीपीटी पर जा सकते हैं और चैट जीपीटी कहाँ से हम यूज कर सकते हैं। तो चैट जीपीटी ओपन एआई ने बनाया है, तो हमें ओपन एआई की वेबसाइट पर जाना पड़ेगा और वहां हमें कुछ इस तरह का पेज दिखेगा जहां पर लॉग इन और साइन अप का ऑप्शन है। यहाँ अगर आप नीचे देखें तो ट्राई चैट जीपीटी लिखा हुआ है। अगर हम इस ट्राई चैट जीपीटी को क्लिक करेंगे तो हमें कुछ इस तरह का पेज मिलेगा और इस पेज पर जाकर हम साइन अप कर सकते हैं। साइन अप करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको क्लिक करना होगा और क्लिक करने के बाद हमें एक ईमेल अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। जनरली क्या होता है कि हम सभी लोग अपने मोबाइल में एक ईमेल आईडी से लॉग इन तो रखते ही हैं, तो हम यहाँ कोई नया ईमेल एड्रेस बनाने के बजाय या यहाँ पर लॉग इन करने के बजाय हम कंटिन्यू विद जीमेल कर सकते हैं। कंटिन्यू विद गूगल करते ही जो भी ईमेल आईडी आप उस ब्राउजर के लिए यूज कर रहे हैं वहां से वो लॉगिन हो जाएगा और इस तरह से आपको चूज एन अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा। इसको चूज करने के बाद ये हमसे अपने बारे में कुछ इंफॉर्मेशन मांगेगा, यहाँ नाम और इसके जस्ट ऊपर जो ब्लैंक स्पेस दिख रहा है यहाँ आपसे डेट ऑफ बर्थ मांगेगा और जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे you will be directed to the next page and it will ask for your mobile number। यहाँ पर आपसे व्हाट्सएप और जो आपका मैसेज है उसका ऑप्शन मांगा जाएगा कि इफ द नंबर यू हैव प्रोवाइडेड इज अवेलेबल ऑन व्हाट्सएप, तो ये आपको व्हाट्सएप पर मैसेज भेजकर एक कोड भेजेंगे और अगर आपके पास व्हाट्सएप नहीं यूज कर रहे हैं आप उस मोबाइल नंबर पर, तो ये आपको मैसेज भेजेंगे। इसके बाद ये आपको लॉगिन से पहले कुछ पजल्स देगा जिससे कि वो ये अंडरस्टैंड कर सके कि आप ह्यूमन हैं। जब आप इस पजल को सॉल्व कर लेंगे, 2 पजल्स होंगी, ये इसमें से एक पजल दिखाइए, एक पजल और है, उसके बाद आपको इस तरह का एक इंटरफेस दिखेगा। इस इंटरफेस में यहाँ पर आपको 2 पेन दिख रहे हैं, एक लेफ्ट में और एक जस्ट नीचे। नीचे लिखा है सेंड मैसेज और साइड में न्यू चैट। जब आप यहाँ पर कुछ लिखते हैं, यहाँ पर आप देखिए यहाँ सर्च नहीं लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है सेंड ए मैसेज। जैसा मैंने कहा चैट जीपीटी में चैट वर्ड का इस्तेमाल किया गया है और चैट का मतलब है कि आप एक दूसरे को मैसेज भेज रहे हैं, आप एक कॉन्वर्जेशन को एस्टैब्लिश कर रहे हैं। तो जो मैसेज आप लिखते हैं यहाँ पर दैट मैसेज इज कॉल्ड प्रॉम्प्ट और उसका जो आंसर आपको चैट जीपीटी देता है, ये जो आंसर चैट जीपीटी ने दिया है इसको बोलते हैं कंप्लीशंस। तो जितनी बार हम उसको प्रॉम्प्ट करते हैं हमें उतनी बार कुछ ना कुछ कंप्लीशंस मिलते हैं। तो इसको हम सर्च नहीं कहते, इसको हम कहते हैं प्रॉम्प्ट और जो आंसर चैट जीपीटी से मिलता है उसको बोलते हैं कंप्लीशंस। तो अब मैं आपको चैट जीपीटी किस तरह हमें यूज करना है ये मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि हम चैट जीपीटी के लिए ओपन एआई के पेज पर आएंगे, यहाँ पर ट्राई चैट, ये स्क्रीन दिख रहा है, नहीं दिख रहा एंड तो हमें openai.com पर आना पड़ेगा। इसके बाद हम ट्राई चैट जीपीटी पर क्लिक करेंगे।
तो चैट जीपीटी का प्रॉम्प्ट हमें कुछ इस तरह दिखाई देगा। अब जैसे अगर हम पहली बार चैट जीपीटी को इस्तेमाल कर रहे हैं तो मैं यहाँ लिखती हूँ आई एम यूजिंग द चैट जीपीटी फॉर द फर्स्ट टाइम, प्लीज टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो चैट जीपीटी ने अपने बारे में कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है। उसने हमें कंप्लीशन दिया कि वेलकम टू चैट जीपीटी, आई एम एन एआई लैंग्वेज मॉडल डेवलप्ड बाय ओपन एआई बेस्ड ऑन जीपीटी 3.5 आर्किटेक्चर। और इसके अलावा इसने अपना पर्पस भी बताया कि माय मेन पर्पस इज टू असिस्ट यूजर्स लाइक यू बाय प्रोवाइडिंग यूजफुल एंड इंफॉर्मेटिव रिस्पॉन्सेज टू योर क्वेरी, whether you need help with general knowledge, solving problems, writing assistance or anything else within my capabilities, I am here to lend a hand. इसके बाद हम इससे ये जानना चाहते हैं कि ये पहले लास्ट टाइम कब ट्रेन हुआ था, when the last time you were trained by the तो इसका कहना है कि इसकी ट्रेनिंग सितंबर 2021 में कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद इसके पास कोई भी रियल टाइम कैपेबिलिटीज नहीं है जो ये बता सके कि उसका जो डिप्लॉयमेंट था उस डेटा का वो किस टाइम पर हुआ था। वो रियल टाइम कैपेबिलिटीज इसके पास नहीं है कि जो ये बता सके वो किस दिन आखिरी बार और किस टाइम पर वो लास्ट टाइम ट्रेन हुआ था। अगर मान लीजिए कि हम इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो हम लिख सकते हैं कि चैट जीपीटी कैन कन्वर्स इन हाउ मेनी लैंग्वेजेस। तो इसका कहना यह है कि ये प्राइमरली इंग्लिश में ऑपरेट करता है लेकिन ये मल्टीलिंगुअल मॉडल्स को भी ऑपरेट कर रहा है। इसका मतलब ये है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि चैट जीपीटी से हमने जितने भी प्रॉम्प्ट हमने उसको दिए उसके कुछ आंसर्स हमें मिले। अब मैंने जैसा आपको बताया था कि सुपरवाइज्ड लर्निंग या फिर जो फीडबैक बेस्ड लर्निंग है वो किस तरह होगी। तो सुपरवाइज्ड लर्निंग तो ये बता रहा है कि ये सितंबर 2021 में सुपरवाइज कर दिया गया था ट्रेनिंग में डेटा से। लेकिन अगर मैं कहती हूँ कि थम्स अप, और इसको कुछ फीडबैक देते हैं, करेक्ट इन्फॉर्मेशन, और अपना फीडबैक सबमिट कर देते हैं, नाउ दिस वोट इज द थम्स अप। तो ये फीडबैक अब चैट जीपीटी ये डेटा के साथ एसोसिएट हो जाएगा और चैट जीपीटी इस फीडबैक को अडॉप्ट कर लेगा और जितनी बार इस तरह का कोई स्टेटमेंट वहां लिखा जाएगा ये डेटा सही माना जाएगा और उसके पास ये होगा। अब इम्पोर्टेंट बात क्या है कि इसका इस्तेमाल सिर्फ यही कन्वर्सेशन करने के लिए स्टूडेंट्स थोड़ी ही कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, व्हाट स्टूडेंट्स आर डूइंग, give me a essay, provide me a essay on youth in India in 300 to 350 words only. तो जो हमने प्रॉम्प्ट दिया उसका चैट जीपीटी ने एक कंप्लीशन दिया और विद इन दी 300 to 500 वर्ड्स ये अपना डेटा कंपाइल कर रहा है और हमें कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है, हमारे साथ कन्वर्सेशन कर रहा है।
अगर इसके बीच में हमें लगता है कि ये जो टाइटल हमने दिया था, इस टाइटल के साथ हम और भी डेटा चाहते हैं, मान लीजिए कि स्टेटस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और यहां लिखते हैं प्लीज ऐड। तो ये प्रीवियस वाले कॉन्वर्जेशन के साथ उसको एसोसिएट कर देगा अगर इसके पास कुछ स्टेटस होगा तो इसका क्या कहना है कि अपॉलजीज फॉर नॉट covering the status of employment in the previous essay. Here an additional section of the status of employment for the essay on youth in India. और ये आपको अब जो आपने recent जो आपने prompt दिया please status of employment also, ये यहाँ पर आपको उसका completion दे रहा है। अब इसको थोड़ा सा आप अपने क्लासरूम के हिसाब से देखिए, आपने स्टूडेंट को एक असाइनमेंट दिया, आपने स्टूडेंट को कहा एक ऐसे लिखने के लिए, और जो स्टूडेंट है वो इस तरह से ऐसे को क्रिएट कर रहा है, और अगले दिन लाकर उसने आपको वर्ड फाइल का प्रिंट निकालकर आपको ऐसे पकड़ा दिया। उसका काम तो मुश्किल से 10 मिनट का भी नहीं था। तो अब टीचर को ज्यादा स्मार्ट होने की जरूरत है, क्योंकि ऐसी टेक्निक्स आज अवेलेबल हैं। तो टीचर को पहले से इस चीज का जो सोल्यूशन है वो ढूंढ के रखना पड़ेगा, उसको कुछ ना कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन वो स्टूडेंट के को देनी पड़ेगी जो रियल लाइफ की हो। मान लीजिए यूथ आपने दिया और उसको कहा कि आप 10 लोगों के इंटरव्यूज को उसमें डाल दीजिए, वो वीडियो इंटरव्यूज होने चाहिए। उस कंडीशन में वो चैट जीपीटी से वो डेटा नहीं रिट्रीव कर पाएगा, क्योंकि चैट जीपीटी सिर्फ और सिर्फ कन्वर्सेशन कर सकता है, कोई भी रियल टाइम एक्सपेरिमेंट नहीं रन कर सकता। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि स्टूडेंट्स इस तरह के टूल्स को गलत तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये टूल इतना बुरा है कि हम इसका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि जब आप अपने स्टूडेंट्स के लिए कोई नई इंफॉर्मेशन क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ पर विद इन अ सिंगल क्लिक यू कैन जनरेट इनॉर्मस इंफॉर्मेशन। लेकिन वो इंफॉर्मेशन कितना सही है ये हमें देखना होगा, और ये हम तभी देख सकते हैं जब हमें अपने सब्जेक्ट का प्रॉपर नॉलेज होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो मुझे यहाँ बतानी थी वो ये थी कि ये सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही रेस्पॉन्स नहीं देता। मान लीजिए कि मुझे जानना है कि धौलपुर राजस्थान में, धौलपुर इंडिया में कहाँ है? इंटरनेट पर प्रोसेसिंग। हाँ तो नहीं, वो प्रॉम्प्ट है वो तो देख बन सकता। मीटिंग डिस्कनेक्ट हो गई होगी। ये मीटिंग चल रही है। तो आप चैट जीपीटी पर एक नॉर्मल रनिंग लैंग्वेज में आप हिंदी को इंग्लिश वर्ड्स में भी लिख सकते हैं और फिर भी ये आपको रेस्पॉन्स प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा आप उसके अंदर हिंदी टेक्स्ट भी दे सकते हैं और वो आपको हिंदी में रेस्पॉन्स भी देगा। और ये आपको हिंदी में रेस्पॉन्स भी देगा। तो
चैट जीपीटी इज बेसिकली एक ऐसा टूल है जिसका इस्तेमाल आज सबसे ज्यादा दुनिया में लोग कर रहे हैं कंटेंट को डेवलप करने के लिए। लेकिन जैसा मैंने बताया कि कंटेंट के साथ हमें ये भी चेक करना है कि चैट जीपीटी से मिला हुआ कंटेंट कितना ऑथेंटिक है और कितना प्लेगराइज्ड है। आपको प्लेगरिज्म को दूर करने के लिए ग्रामरली सॉफ्टवेयर, यू कैन यूज द ग्रामरली सॉफ्टवेयर, जो आपके कंटेंट को का प्लेगरिज्म भी चेक कर सकता है और उसके साथ उसकी ग्रामर को भी करेक्ट कर सकता है। अगर आप कोई ब्लॉग लिखते हैं या फिर कोई वेबसाइट पर किसी कंटेंट को बनाना चाहते हैं या कोई रिपोर्ट बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको चैट जीपीटी से इंफॉर्मेशन अगर लेना है तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि उसका डेटा वो एक समरी है, बहुत सारे रिसोर्सेज से कलेक्ट की हुई, वो कोई खुद से कोई नई चीज को जनरेट नहीं कर रहा है। तो आपको उसका प्लेगरिज्म भी चेक करना है और प्लेगराइज डेटा को हटाकर उसको अपने वर्ड्स में राइट कर फिर ही प्रॉपर तरह से अपनी रिपोर्ट्स के अंदर लिखना है। तो आप डायरेक्ट चैट जीपीटी के डेटा को करेक्ट मानकर अपने ब्लॉग पर, अपनी रिपोर्ट में या अपनी वेबसाइट पर अगर आप यूज करते हैं तो देयर आर पॉसिबिलिटीज कि आपका डेटा प्लेगराइज हो और आप पर किसी तरह की जो फॉल्स मतलब आप गलत तरह से, गलत मीन से उस डेटा को यूज कर रहे हैं विदाउट दी प्रॉपर परमिशन, तो वहां पर आपको प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो कॉपीराइट का आपको बेहद ध्यान रखने की जरूरत है। तो नाउ वी आर बैक। इसका सर्वर कई बार क्योंकि बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं, इसका सर्वर कई बार दिक्कत करता है, तो आपको परेशान नहीं होना, इसका सर्वर प्रॉब्लम है ये। तो मैंने आपको कहा था कि हम हिंदी में भी इसको कोई टेक्स्ट दे सकते हैं और हिंदी में भी ये रेस्पॉन्स देगा। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा था कि मैं पहली बार चैट जीपीटी का उपयोग कर रही हूँ, मुझे अपने बारे में बताइए, तो ये आपको आपके प्रॉम्प्ट का आंसर हिंदी में ही देगा। तो ऐसा नहीं है कि हम इसका इस्तेमाल केवल और केवल इंग्लिश लैंग्वेज में ही कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल हम हिंदी और भी और बहुत सारी लैंग्वेजेस में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और ये हमें उसी भाषा में आंसर करेगा। कुछ वर्ड्स ऐसे हो सकते हैं जो कि इंग्लिश में ही अवेलेबल हो, वो वहां आपको इंग्लिश में मिलेंगे, अदरवाइज जो कन्वर्सेशन की भाषा है वो आपकी, जिस पर आपने प्रॉम्प्ट किया है जिस भाषा में, उसी भाषा में आपको कंप्लीशन मिलेगा। तो ये चैट जीपीटी के बारे में सब कुछ है। अगर आपको चैट जीपीटी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है तो अभी फिलहाल आप चैट जीपीटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके आगे हम चैट जीपीटी और ब्लॉग क्रिएशन की बात करेंगे। तो अभी चैट जीपीटी तक अगर आपको कुछ क्वेश्चंस हैं तो यू कैन आस्क। Hello, ma'am. Shall I ask one question? जी, जैसे आपने बताया है, like many informations are there, but again, for after 2021, the informations whatever you ask, it is not there. Okay, but regarding the subject like history, yes, in history it will be a challenge, isn't it? yes ma'am. In history it will be a challenge. A challenge. Yes. हिस्ट्री और जो भी डिस्कवरीज हो, जो भी टॉपिक्स है बिफोर 2021 का डिस्कवरी, इनोवेशंस एंड इंफॉर्मेशन से, उसमें देयर विल बी ए चैलेंज। दैट इज व्हाट अबाउट व्हाट्स योर ओपिनियन? 2021 से पहले तक जितना भी हिस्टोरिकल डेटा है वो करेक्ट होगा और इंफॉर्मेशन, क्योंकि ये ट्रेंड है, क्योंकि पहले भी चैटबॉट्स अवेलेबल थे और वो चैटबॉट्स ही काम कर रहे थे, लेकिन चैट जीपीटी उनसे काफी अलग है क्योंकि इसकी जो ट्रेनिंग हुई है वो बहुत डेंस ट्रेनिंग है और मिलियंस ऑफ डेटा से इसको ट्रेन किया गया है। वो चैटबॉट्स केवल और केवल चैटिंग पर्पस से थे, जनरल, जैसे कि अभी का वेदर क्या है, इस तरह का। लेकिन अभी जो चैट जीपीटी का जो सबसे बड़ा यूज है वो ये है कंटेंट क्रिएशन के लिए। तो कंटेंट क्रिएशन के लिए जो डेटा उन्होंने पहले से प्रोवाइड कर रखा है उसको प्री ट्रेन कर रखा है लैंग्वेज मॉडल को। 2021 तक वहाँ हिस्ट्री, ज्योग्राफी तक लगभग सारी इंफॉर्मेशन सही होगी, हो सकता है वो आपके लिए रेलेवेंट ना हो, लेकिन जो अवेलेबल होगा टेक्स्ट में वो ठीक है। लेकिन हाँ, अगर आप हिस्ट्री में जैसे विकी पेजेस, अब लोग विकी पेजेस को एडिट कर देते हैं, बट चैट जीपीटी उन विकी पेजेस से भी ट्रेंड है। अब मीनवाइल आपने वहां पर चेंज कर दिया और आप वहां आप चेक कर रहे हैं,
और लेकिन चैट जीपीटी 2021 तक ट्रेंड है, तो वो अभी जो विकी पेज है उससे तो ट्रेंड नहीं है। तो अगर आपने विकी पेज में कुछ एडेड कर दिया है तो वो ट्रेनिंग आपको वहां नहीं दिखेगी। तो 2021 से पहले पहले तक जो डेटा, जो बुक्स, जो जर्नल्स, जो कॉन्फ्रेंस पेपर्स, जो रिपोर्ट्स अवेलेबल थी इंटरनेट पे, उन सब का एक समरी आपको जरूर हिस्ट्री में भी मिलेगा। अगर हम हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन, मैम आप सजेस्ट करिए कोई क्वेश्चन, लेट्स सी व्हाट रिस्पॉन्स इट गिव्स। Yes. तो बेसिकली इट इज ट्रेन्ड विद द डेटा। Yes, yes, yes. तो ये एक समरी आपको प्रोवाइड कर देगा। अब वो समरी ये हो सकता है वो एक कन्वर्सेशन फॉर्म में है, एक ह्यूमन इंटरेक्शन की फॉर्म में है, तो हो सकता है वो वैसा हिस्टोरिकल डेटा आपको ना मिले, वो एक कन्वर्सेशन की तरह मिलेगा, जैसे आपको लगेगा कि ये सामने बैठा हुआ हम एक व्यक्ति से बात कर रहे हैं। तो इसका मेजर पर्पस ही यही था कि इसको बनाने का पर्पस ही ये था कि एक ह्यूमन कन्वर्सेशन, क्या ह्यूमन मशीन ह्यूमन को रिप्लेस कर सकती है, Machine. ये इसको बनाने का पर्पस था। पर्पस था। एंड फिर एक और मैम मैं पूछ रही हूँ, जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम दे रहे हैं, क्वेश्चन पेपर असाइनमेंट हो, अपनी एग्जाम हो, प्रॉक्टर्ड एग्जाम हो, जैसा कोई सा भी क्वेश्चन पूछ रहे बिफोर 2021 का, जैसा अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की फॉर एग्जाम्पल 2021 के पहले वाला जो क्वेश्चन हम इसमें पूछेगा तो एकदम ये जवाब देगा विद द रीजनिंग। यस, क्विजेस वगैरह जैसे हम इसमें से बना ले एकदम विद द रीजनिंग, जी, why this answer is correct, you know, with the reasoning it gives. यस, so हाँ वही एक it is easy now, information आ गई, बहुत easy हो गई, but again for teaching fraternity and for assessment scheme, it is a challenge. ChatGPT हमें लगता है it's a big challenge. For a teacher is also a challenge. For teacher also, students से आगे चलना है, टीचर्स को ChatGPT के साथ साथ पहले क्या क्या ऑप्शन दे स्टूडेंट दे सकते हैं आंसर, वो पहले आपको सीखना होगा, then बिल्कुल, have it go to the class. वो ये it's ChatGPT has become a very big challenge now. Very big challenge. I want to add one more point. जैसे हम ChatGPT को जब हम यूज करते हैं तो हम क्वेश्चन लिखते हैं, हो सकता है हम बैठे हुए सारे लोगों में ये सारे क्वेश्चन अलग अलग हों, तो जैसा मैंने कहा आपको एक प्रॉम्प्ट, एक वर्ड है प्रॉम्प्ट, जो हम इससे पूछते हैं, प्रॉम्प्ट टू जीपीटी, तो जैसा प्रॉम्प्ट होगा उसका रेस्पॉन्स उतना ही डिफरेंट होगा। जैसे मैंने पूछा हु इज महात्मा गांधी, आंसर इज डिफरेंट। अगर मैं कुछ और पूछती तो शायद इसका आंसर अलग होता। तो आपको अगर एज ए टीचर ChatGPT को यूज करना है, तो जब आप क्वेश्चन को फ्रेम कर रहे हैं तो पहले आप एक सिंपल क्वेश्चन लिखकर उसको ChatGPT में चेक करिए कि उसका आंसर ChatGPT क्या दे रहा है। उसके बाद आपको उस प्रॉम्प्ट को बदल देना है। और जो मैंने जिन जॉब्स की बात की थी कि वो व्यक्ति आपकी जॉब ले लेगा जो AI को जानता होगा, एंड that is called the prompt engineering. Companies are hiring prompt engineers जो कि अलग अलग तरह से डेटा को सर्च कर सकें, क्योंकि हर बार उसका जो कन्वर्सेशन है वो डिफरेंट होगा। तो हमें भी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी बिफोर गिविंग असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट्स टू द स्टूडेंट्स, बिफोर गोइंग टू द क्लासरूम हमें पहले से प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का यूज करना पड़ेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात की ChatGPT का अब ऐप भी अवेलेबल हो गया है। पहले तो ये था कि पूरी वेबसाइट खोलनी पड़ती थी, अब OpenAI ने उसका ऐप भी दे दिया है। तो स्टूडेंट जब आप पढ़ा रहे हैं, मीनवाइल ChatGPT पर उस क्वेश्चन को प्रॉम्प्ट करके एक आंसर भी ले लेगा और फिर वो आपसे उसके अंदर कुछ ना कुछ पूछेगा। तो जब भी आप क्लासरूम में जा रहे हैं, एक टीचर क्लासरूम में जा रहा है, तो ये टीचर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि वो अपने स्टूडेंट से 10 कदम आगे कैसे रहे। तो टीचर को भी इन सारे टूल्स को यूज करना चाहिए और इन टूल्स को यूज कर देखना चाहिए, और बल्कि रोज यूज करना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने स्टूडेंट्स के साथ
कोप अप करना चाहते हैं, उनके साथ कदम से कदम मिला के चलना चाहते हैं या आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको इन जो टूल्स अभी जो लेटेस्ट टूल्स हैं उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए और उसके पीछे की टेक्नोलॉजी को भी समझना चाहिए, तभी आप उनसे आगे जा पाएंगे। एनी मोर क्वेश्चन? सबका क्या कहते हैं? जी, तो नेक्स्ट जो पार्ट है मेरी प्रेजेंटेशन का वो है ब्लॉगर। हाउ वी कैन क्रिएट अ ब्लॉग। पहले हर व्यक्ति अपने क्लासरूम में नोट्स को लेकर जाता था और अपने स्टूडेंट्स को डिलीवर करने के बाद हम उसको नोट्स दे देते हैं, भाई ये क्लासरूम के नोट्स हैं, प्लीज टेक इट, अंडरस्टैंड इट, रीड इट एंड गिव योर असाइनमेंट इन द सेम फॉर्म, मींस पेपर। अब क्योंकि जब से हम पोस्ट कोविड फेज में आए, तब पहले ड्यूरिंग द कोविड फेज हम उनसे सारे असाइनमेंट्स ईमेल पर मांग रहे थे, व्हाट्सएप पर मांग रहे थे। अब स्टूडेंट भी उन चीजों को अडेप्ट कर चुका है और टेक्नोलॉजी के अडेप्शन के बाद उसको छोड़ना एक डिफिकल्ट चीज है। तो जब आप आगे निकल चुके हैं तो पीछे आने की कोई वजह नहीं है। तो टीचर को भी अपना कंटेंट ई फॉर्मेट में रखने की जरूरत है और लगभग आप किसी भी तरह के एक्रेडिटेशन के लिए जाते हैं, वहां आपसे हर चीज में वो मांगते हैं कि इसका सॉफ्ट कॉपी दीजिए, इसका सॉफ्ट कॉपी दीजिए। तो आपको जरूरत है कि आप अपने सारे के सारे नोट्स को ई फॉर्मेट में रखें। और उसके साथ साथ जैसा मैंने आपसे कहा था कि जब आप क्लासरूम से बाहर एक्टिव लर्निंग को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो स्टूडेंट के साथ आपको 24/7 रहना है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि टीचर 24/7 अपने स्टूडेंट के साथ रहे? तो उसके लिए हम वेबसाइट या फिर एक ब्लॉग की हेल्प ले सकते हैं। जब भी आप फ्री हैं, यू कैन राइट ए ब्लॉग, you can give information, you can create some sort of discussion on your blog. And how you can create a blog is not a very difficult task nowadays, because previous time में जब blog start हुए थे तब वहाँ थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग स्किल्स की जरूरत पड़ती थी, लेकिन अब बिल्कुल भी प्रोग्रामिंग स्किल्स की जरूरत नहीं है एक वेबसाइट को या एक ब्लॉग को क्रिएट करने के लिए। बहुत इजीली आप एक वेबसाइट या एक ब्लॉग को क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि अब जितने भी प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं वो आपको पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी देते हैं, जहां आप अपने हिसाब से कंटेंट को कहां प्लेस करना है, कहां आप लॉगिन कराना चाहते हैं स्टूडेंट से, इस तरह के सारी चीजें जो एक बड़ी वेबसाइट में होती हैं वो आज बहुत आसानी से एक टीचर अपने लिए क्रिएट कर सकता है। अब आपको एक ब्लॉग या वेबसाइट क्यों बनानी चाहिए? आपने कुछ बहुत अच्छा कंटेंट अपने स्टूडेंट्स को प्रेजेंट किया, वो आपका कंटेंट है, लेकिन जब उस बच्चे ने कहीं और दे दिया और किसी और टीचर को मिला तो वो उसका भी कंटेंट हो गया, तो आपका डिजिटल फुटप्रिंट नहीं है उस कंटेंट के लिए। तो आप कैसे कहेंगे कि ये कंटेंट मेरा डेवलप किया हुआ है? आजकल कंटेंट पर ही कॉपीराइट हो रहा है इतना सारा, तो कॉपीराइट इश्यूज कंटेंट पर ज्यादा उठ रहे हैं। तो आपको, अगर आपने उस कंटेंट को पहले से ही कहीं ऑनलाइन पब्लिश किया हुआ है तो दैट कैन नॉट बी कॉपीराइटेड बाय एनीवन एल्स। तो अगर आप अपने कंटेंट को ओन करना चाहते हैं तो यू शुड गो फॉर ए वेबसाइट और ए ब्लॉग। आपका खुद का एक पर्सनल ऑनलाइन स्पेस है जहां स्टूडेंट आपसे कांटेक्ट कर सकता है कभी भी। और जब आप इस तरह की चीजें करते हैं तो आपको भी नया आईसीटी लिटरेसी, आपके अंदर कैपेबिलिटीज बढ़ती हैं, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है, क्योंकि ब्लॉग लिखने में बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी की जरूरत है। पिक्चर्स चाहिए, वीडियोस चाहिए, आपको कंटेंट को बहुत अच्छे तरह से लिखना होगा, फिर वहां प्रेजेंट करना होगा, तो क्रिएटिविटी भी टीचर के अंदर एनहेंस होती है। सोशल स्किल्स एंड कॉन्फिडेंस, जब आप उसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जा रहे हैं तो ऑब्वियस ही बात है, लोग ना सिर्फ आपके स्टूडेंट बल्कि और जगहों से भी लोग आपसे कांटेक्ट करेंगे, यू विल गेन सोशल पॉपुलैरिटी, वहां आपके सोशल स्किल्स भी इंप्रूव होंगे और आपको खुद भी कॉन्फिडेंस फील होगा कि हमारा कंटेंट काफी सारे लोग पढ़ रहे हैं और लोग पसंद कर रहे हैं। आईसीटी स्किल्स एंड डिजिटल लिटरेसी, जैसा हम बोल चुके हैं, ग्लोबल कनेक्शंस, इफ योर ब्लॉग और वेबसाइट बिकम्स वेरी पॉपुलर, आपको एक ग्लोबल रीच मिलेगा,
लोग आपके कंटेंट को पढ़ेंगे और उसको अप्रिशिएट करेंगे। इट इज पर्पसफुल, प्रोडक्टिव एंड ऑफ कोर्स इट इज फन। तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, जिसमें से मैंने 4 लिस्ट किए हैं, ब्लॉगर, वर्डप्रेस, विक्स एंड वीबली। ब्लॉग और वेबसाइट में एक छोटा सा डिफरेंस है कि ब्लॉग डे बाय डे अपडेट होता है, मतलब जो भी आप लिखेंगे वो पहले आएगा आपकी टाइमलाइन के हिसाब से, लेकिन जब आप वेबसाइट में कोई कंटेंट लिखते हैं तो वो टाइमलाइन नहीं दिखाता। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ब्लॉग एंड वेबसाइट। ब्लॉग जनरली आप डेली अपडेट करते हैं, कोई डेली इंफॉर्मेशन आपको इम्पार्ट करनी है तो आप ब्लॉग लिखते हैं, और अगर आप अपना उसको कंटेंट की तरह डिस्प्ले करना चाहते हैं देन यू विल गो फॉर द वेबसाइट। देयर इज नो मेजर डिफरेंस रिगार्डिंग द ब्लॉग एंड वेबसाइट। तो वर्डप्रेस, विक्स एंड वीबली, इसमें थोड़ा सा जो कस्टमाइजेशन के लिए जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। इजी प्रोसेस के लिए वी विल गो फॉर दी ब्लॉगर। blogger.com पर जब आप सर्च करेंगे गूगल में ब्लॉगर कि ब्लॉग कैसे क्रिएट करें, तो आपको सर्च करने के बाद पहली वेबसाइट मिलेगी blogger.com। जब आप इसको क्लिक करेंगे यू विल बी डायरेक्टेड टू अनदर पेज, और वो पेज आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा, क्रिएट योर ब्लॉग एंड साइन इन। आपको सबसे पहले क्रिएट योर ब्लॉग पर क्लिक करना है, और इसके बाद आपसे नेक्स्ट पेज में वो आपसे कोई एक ईमेल अकाउंट पूछेगा। तो जनरली जो भी हम ईमेल अकाउंट लॉगिन कर रखा है हम उसी से लॉगिन कर लेंगे, और फिर हम ब्लॉग क्रिएशन के इस पेज पर आ जाएंगे जहां हमसे वो ब्लॉग का टाइटल पूछे। यहाँ हमें ब्लॉग का टाइटल लिखने के बाद नेक्स्ट करना है। अब इंपॉर्टेंट बात, जैसे ही हम नेक्स्ट करेंगे, ब्लॉग का टाइटल हमने कुछ भी दे दिया, मान लीजिए आईसीटी टूल्स फॉर इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग, इसके बाद ये हमसे ये पूछेगा कि ब्लॉग का नाम हम क्या रखना चाहते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमने किसी भी तरह का डोमेन नेम, स्पेसिफिक डोमेन नेम परचेज नहीं किया है पैसे देकर। हमें कुछ ऐसा नाम रखना पड़ेगा जो कि यहाँ अवेलेबल हो। जैसे कि मैंने यहाँ इजी एक्टिव लर्निंग रखा तो ये अवेलेबल है, जब मैंने पहले यहाँ पर एक्टिव लर्निंग रखा था तब ये अवेलेबल नहीं था। तो जब तक ये मैसेज डिस्प्ले ना हो जाए कि दिस ब्लॉग एड्रेस इज अवेलेबल, हमें हंट करना पड़ेगा एक प्रॉपर यूआरएल के लिए, और जब हमें एक प्रॉपर यूआरएल मिल जाएगा तो हम नेक्स्ट कर देंगे और हम नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर हमसे एक नाम पूछेगा जो कि हमारे जो डिस्प्ले हम करना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ पर एक नाम दिया और फिनिश कर दिया। फिनिश करने के बाद ये ब्लॉग का जो लॉगिन साइन अप का पोर्शन था वो कंप्लीट हो गया और हमें कुछ इस तरह का पेज मिला। अब हम इस पेज पर काम करेंगे, यहाँ तक तो साइन अप कर दिया हमने, अब हम इस पेज पर काम करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम एक ब्लॉग को क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे आपको आप देख पा रहे हैं, ठीक है, तो जैसे आपको डिस्प्ले हो रहा है, हम साइन अप करने के बाद इस पेज पर आ चुके हैं। यहाँ पर हमें पोस्ट, स्टैट्स, कमेंट्स, अर्निंग, पेजेस, लेआउट, थीम, सेटिंग्स, रीडिंग लिस्ट, व्यू ब्लॉग, और यहाँ पर न्यू पोस्ट का ऑप्शन दिख रहा है। तो हम एक नया ब्लॉग स्टार्ट करना चाहते हैं, हम यहाँ ये जो ऊपर एरो बना हुआ है इस ड्रॉप डाउन मेन्यू को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर एक नया ब्लॉग, एक नया टाइटल लिखते हैं, जैसे इजी लर्निंग। क्वेश्चन, तो जैसे हमने पीछे टाइटल दे दिया, अब हमसे एड्रेस पूछ रहा है कि आप अपने ब्लॉग का एड्रेस बताइए। तो आईसीटी टूल्स, अब यहाँ लिखा आ रहा है सॉरी दिस ब्लॉग एड्रेस इज नॉट अवेलेबल, तो हम यहाँ पर
इस टाइटल को चेंज, इस एड्रेस को चेंज करेंगे ICT tools for teaching, and this blog address is available, and we will save it. और यहाँ हमारा ICT टूल नाम का एक ब्लॉग जो है वो कंस्ट्रक्ट हो गया है। अगर हम इस ब्लॉग को अभी व्यू करते हैं तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, अभी ये खाली है। अब हमें यहाँ पर कंटेंट को लिखना है, वापस आएंगे और यहाँ पर आपको पेजेस का ऑप्शन दिख रहा है, आप पेजेस में जाएंगे, बाद में यहाँ पर न्यू पेज को क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको एक नया एक पेज, वेब पेज खुला हुआ है जिसमें यहाँ हमसे टाइटल पूछा है और यहाँ पर हमसे कुछ चीजें पूछी हुई हैं, यहाँ ब्लैंक स्पेस है। तो मान लीजिए पहले हम सबसे पहले हम लिखना चाहते हैं अबाउट, और अबाउट में हम यहाँ पर कुछ टेक्स्ट देना चाहते हैं। अब जैसा मैंने आपसे कहा था कि हम चैट जीपीटी को कैसे यूज करेंगे वो भी हमें देखना है और हमें ब्लॉग भी लिखना है। तो I will create some content using ChatGPT itself. So I'm going to write, I'm going to prompt about us content for a ICT tools in teaching blog. और ये हमें कुछ कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है, ये हमें कुछ कंप्लीशन दे रहा है और हम इस कंप्लीशन को उठा के एज इट इज अभी फिलहाल के लिए पेस्ट कर देंगे। यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पेज में जाकर पेस्ट कर दिया। इसकी थोड़ी सी टेक्स्ट स्टाइल चेंज करने के लिए हम पैराग्राफ में जाएंगे, हम इसको पैराग्राफ की तरह ही छोड़ देंगे। अगर हम चाहते हैं इसका फॉन्ट साइज बड़ा करना तो हम इसका फॉन्ट साइज यहाँ से बड़ा कर सकते हैं या छोटा कर सकते हैं। हम इसको मीडियम कर लेते हैं। यहाँ पर हम इसको जस्टिफाई कर सकते हैं, जस्टिफाई टेक्स्ट, और इस तरह से हमें यहाँ पर कुछ डेटा यहाँ मिल गया है और इसने और भी कंटेंट प्रोवाइड किया है, इसको भी यहाँ पेस्ट कर देते हैं। और ये हमारा अबाउट अस पेज क्रिएट हो चुका है। अगर आप यहाँ से इसका अगर आप यहाँ से इसका कलर चेंज करना चाहते हैं या इसका फॉन्ट साइज या इसका टेक्स्ट किस तरह का होगा वो चेंज करना चाहते हैं, जैसे कि ये अभी फिलहाल इसको एरियल कर देते हैं तो हमें टेक्स्ट इस तरह दिखाई देगा। अब यहाँ से इसको पब्लिश कर देंगे हम और ये पूछेगा कंफर्म करने के लिए, इसको कंफर्म कर देंगे। और अब इसको रिफ्रेश करते हैं तो अभी भी हमें यहाँ पर कुछ नहीं दिखेगा। ठीक, अब हम एक और काम करते हैं कि इस अबाउट अस में हम कुछ इमेज को क्रिएट करते हैं, एक कोई इमेज देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ ये इमेज और यहाँ ये इसके जस्ट बगल में वीडियो का ऑप्शन मिलेगा कि आप वीडियो अपलोड कर सकते हैं अपने कंप्यूटर से या यूट्यूब से, या फिर आप कोई भी इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं कंप्यूटर से या फिर किसी भी वेब यूआरएल से, या अपने फोटोज जो आपने गूगल पर स्टोर कर रखे हैं वहां से। तो अभी प्लान हम कंप्यूटर से अपलोड करेंगे, चूज फाइल, और इस इमेज को हम यहाँ अपलोड कर देंगे। और ये इमेज यहाँ पर ऐड हो चुकी है। अब अगर आप चाहते हैं कि इमेज ऊपर आए टेक्स्ट नीचे है, वो आप अपने हिसाब से उसको फॉर्मेट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम अबाउट अस में हमने अपने ब्लॉग के बारे में लिख दिया और उस ब्लॉग के रिलेटेड एक इमेज हमने वहां पेस्ट कर दी और इसको अपडेट कर दिया। तो पहले हमने पब्लिश किया था, पब्लिश होने के बाद हमारे पास पेज क्रिएट हो गया,
अब उसके बाद अगर आप उस पेज में कुछ भी एडिट करेंगे तो इंफॉर्मेशन अपडेट होगी। इसके बाद वापस हम लौट कर जाएंगे पेजेस पर, तो हमें यहाँ पर एक पेज क्रिएटेड दिख रहा है। इसके बाद हमें कहाँ जाना है, हमें क्योंकि हमारे ब्लॉग पर कुछ दिख नहीं रहा, तो हम जाएंगे लेआउट के अंदर। लेआउट के अंदर आपको यहाँ पर आईसीटी टूल्स का हेडर दिख रहा है। इसमें यहाँ पर ब्लॉग डिस्क्रिप्शन और इमेज आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो जहां पर आपके ब्लॉग का नाम आ रहा है वहां पर आपको ये हेडर दिखाई देगा। अगर आप यहाँ देखें तो ये अबाउट मी पेज है। अगर आप यहाँ देखें तो सर्च दिस ब्लॉग हेडर पेज लिस्ट, यहाँ पर हम इसको क्लिक करेंगे और इसको एडिट करेंगे। यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे ऐड ए न्यू आइटम, और हमारे पेज का नाम था अबाउट। इस अबाउट को हम यहाँ प्लेस करेंगे और इसको सेव करेंगे। यहाँ इसको सेव करेंगे और इसके नीचे जो सेव बटन है यहाँ से भी इसको सेव करेंगे। और इसके बाद हम वापस अपने ब्लॉग पर जाएंगे और इसको रिफ्रेश करेंगे। ये जो आपने अब ये अटक गया है। के बाद आपको लेआउट सेक्शन में जाने के बाद आपको यहाँ पर आपको जो आपने जो अपने ब्लॉग का नाम दिया था आईसीटी टूल्स, वो आपको अपने हेडर में दिखाई देगा। अगर आप अपने हेडर को एडिट करना चाहते हैं तो आप इस विजेट से उस हेडर को करेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो वहां पर इमेज ऐड कर सकते हैं।
इस तरह से, और यहाँ पर वो इमेज डिस्प्ले हो जाएगा। आप उस इमेज को कहाँ प्लेस करना चाहते हैं, टाइटल और डिस्क्रिप्शन के पास या उसके बाद? तो हैव ए डिस्क्रिप्शन प्लेस्ड आफ्टर द इमेज। तो जो आईसीटी टूल्स में जो हेडर आपने आईसीटी टूल लिखा था, वो अब आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो हेडर बदल गया अब हमारा, पहले हेडर कुछ और था, इस बार हेडर कुछ और है। तो इस तरह से हम अपने इस विजिट हेडर विजिट को चेक कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपको अपने ब्लॉग का जो ये थीम है, इस थीम को ठीक करना है, मतलब आप थीम कुछ और रखना चाहते हैं, तो आप थीम्स में जाने के बाद इनमें से कोई भी अवेलेबल थीम को सेलेक्ट कर आप अपने ब्लॉग को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव और फीचर्स बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने ये वाला थीम सेलेक्ट किया और इसको अप्लाई किया, तो यहाँ लिखा आ रहा है न्यू थीम अप्लाइड सक्सेसफुली। और जब हम इसको वापस से रिफ्रेश करेंगे तो नाउ द थीम हैज बीन इंस्टॉल्ड। यहाँ पर अगर आप आते हैं पोस्ट, यहाँ पर एक सेक्शन है जिसको हम कहते हैं पोस्ट। और अगर हम कोई पोस्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो हम अपने ब्लॉग के लिए कोई पोस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर एक न्यू पोस्ट ऐड करते हैं और बिल्कुल ऐसा ही जैसा पेज के समय हमें मिला था, वो यहाँ पर हमें एक टाइटल यहाँ पर देना पड़ेगा। तो मान लीजिए हम पहला टाइटल देते हैं आईसीटी, इम्पोर्टेंस ऑफ आईसीटी। और इसको पब्लिश कर देते हैं। तो अभी इस पोस्ट में कुछ भी नहीं लिखा, तो हम यहाँ पर कुछ ऐड कर देते हैं डेटा और इसको पब्लिश कर देते हैं। तो अगर आप इसको प्रीव्यू करेंगे तो आपकी जो पोस्ट है वो कुछ इस तरह दिखाई देगी। ठीक है, तो इस तरह से ये देखिए, अगर हमने अपने ब्लॉग को रिफ्रेश किया तो पहली पोस्ट जो हमने की 27 जुलाई 2023 को, वो पोस्ट हमें यहाँ दिख रही है। अगर हम रीड मोर सेक्शन, अगर हम रीड मोर का भी ऑप्शन देते हैं तो हम जितना बड़ा टेक्स्ट लिखेंगे वो रीड मोर के अंदर हाइड हो जाएगा और इस तरह हम अपनी पोस्ट को भी अपडेट कर पाएंगे। तो ब्लॉग, अगर आप मान लीजिए कोई एक अपना टीचिंग ब्लॉग बनाना चाहते हैं तो आप अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड पेजेस क्रिएट कीजिए अपने ब्लॉग पर और हर पेज के अंदर पोस्ट को इंसर्ट करते जाइए। और अगर आप वो चीज डेली एक्टिविटी में लेकर आएंगे तो क्या होगा कि मान लीजिए आप क्लास में जाने से पहले एक पोस्ट लिखते हैं किसी टॉपिक के बारे में कि कल क्लास में हम ये चीज डिस्कस करने वाले हैं, तो स्टूडेंट आपके ब्लॉग की हेल्प से उस चीज को पहले से उसको पता चल जाएगा कि आप ये एक्टिविटी क्लासरूम में करेंगे। और दिस एक्टिविटी इज कॉल्ड एक्टिव लर्निंग, में दिस एक्टिविटी इज कॉल्ड फ्लिप्ड क्लासरूम। तो अगर आप फ्लिप्ड क्लासरूम टीचिंग मेथोडोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहते हैं, अगर आप फ्लिप्ड क्लासरूम मेथोडोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहते हैं अपने क्लासरूम के अंदर, तो ब्लॉग उसका एक बहुत अच्छा टूल बन सकता है और आप इसकी हेल्प से एक्टिव लर्निंग को परफॉर्म कर सकते हैं अपने क्लासरूम में। तो वैसे तो ये टूल काफी बड़ा है, इसको एक घंटे में या 15 मिनट में समझाना पॉसिबल नहीं है, कुछ टेक्निकल ग्लिचेस भी होते हैं क्योंकि बार बार हमें अपने पेजेस को और अपनी पोस्ट को लिंक करना पड़ेगा अपनी ब्लॉग के साथ। तो जितनी हम पोस्ट लिखेंगे वो लिंक करनी पड़ेंगी हमें अपने पेज के साथ और तब जाकर हमें एक प्रॉपर ब्लॉग मिलेगा। तो मुझे लगता है कि मैंने आपको आईसीटी टूल्स के बारे में लगभग एक जनरल इंफॉर्मेशन बता दी है। अगर आप इन टूल्स को खुद से यूज करेंगे और लगभग उसको हर जगह हर बार उसको रिफाइन करेंगे अपनी सर्च को और अपने ब्लॉग में उन चीजों को लिखेंगे, तो आपके अंदर भी एक कॉन्फिडेंस आएगा और स्टूडेंट आपसे ज्यादा इंटरेक्ट करने की कोशिश करेगा क्योंकि आप बिल्कुल उसी तरह बिहेव करेंगे जैसा कि आपका स्टूडेंट बिहेव कर रहा है। तो वो आप उसका अट्रैक्शन भी गेन करेंगे, उसके अलावा उसका एंगेजमेंट भी बढ़ेगा क्लासरूम एक्टिविटीज में। तो थैंक यू, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क।
सर चैट जीपीटी जो कंटेंट आपको दे रहा है वो एक कॉन्टेक्चुअल समरी प्रोवाइड कर रहा है जिस डेटा से वो ट्रेन हुआ है, तो वहां वो सही या गलत आपको नहीं दे रहा। आपने उसको ये नहीं लिख के दिया प्रोवाइड मी द करेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस, वो आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता, क्योंकि जिस डेटा के साथ वो ट्रेन हुआ है उस डेटा से समरी को कलेक्ट कर कर वो आपको एक कंपाइलेशन दे रहा है अपने कॉन्टेक्ट अपने टेक्स्ट का। तो वो 100% सही है या नहीं, ये कंप्लीटली ह्यूमन ब्रेन पर बेस्ड होगा कि आपके लिए क्या वो जो प्रॉम्प्ट आपने दिया था क्या ये उसका अप्रोप्रिएट आंसर है या नहीं। आप उसको गाइड बनाकर नहीं चल सकते। बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस द आंसर्स आर करेक्ट। नॉट अप्रोक्सीमेशन, हम उसको अप्रोक्सीमेशन नहीं कह सकते क्योंकि वो एक बहुत बड़े डेटा के साथ ट्रेन हुआ है जिसके अंदर बुक्स भी हैं और आपका जो रिसर्च जो स्कॉलरी आर्टिकल्स हैं वो भी हैं और बहुत कुछ रिसर्च फाइंडिंग्स भी हैं। तो आप उसके करेक्टनेस को तब तक क्वेश्चन नहीं कर सकते जब तक आप दोनों चीजों को एक साथ नहीं रखेंगे। दूसरी बात ये कि ये कोई सर्च इंजन नहीं है, मैं फिर से कहूंगी ये कोई सर्च इंजन नहीं है। सर्च इंजन का अपना यूज है, चैट जीपीटी का अपना यूज है। चैट जीपीटी का मेजर यूज ब्लॉग क्रिएशन जो आपकी इंडस्ट्री है उसके अंदर काम को जो टेक्सचुअल जो आपका काम है उसको फास्ट करने के लिए है, लेकिन स्टिल जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है ये उसको रिप्लेस नहीं कर सकता बिकॉज इट इज आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस, इट इज मेड आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस। लेकिन जो ह्यूमन टेंडेंसी है वो लगातार अपने डेटा के साथ जो हम देखते हैं हर दिन में हजारों चीज देखते हैं, हमारा ब्रेन हर चीज के लिए ट्रेन होता है, लेकिन ये 2021 तक ट्रेंड है, तो जब तक अगले डेटा के साथ ट्रेन नहीं होगा ये उतना एफिशिएंटली काम नहीं करेगा। लेकिन हम तो 2021 के बाद आगे बढ़ रहे हैं और हर दिन हर सेकंड आगे बढ़ रहे हैं, तो हमारा ब्रेन तो हर चीज से ट्रेन हो रहा है। तो अगर आप उससे अभी यहाँ पर क्या चल रहा है ये पूछेंगे तो वो ये आंसर नहीं कर पाएगा। Dr. Shilpi Lavanya, it has been a wonderful session. It has been a wonderful session. Really, you have worked hard and you brought this ICT tools, how wonderfully you have put it across and provided an hands-on training on this ICT tools. And you made us believe that without updating teachers with the knowledge of the subject of interest, as well as updating the knowledge on ICT tools, we cannot go ahead and forward ourselves for the future. As the children are getting more, children, of course, new generation children or new millennium children, students are more tech savvy, and hence teachers need to think. These kind of faculty development programs are meant for this purpose only, that before we get into a trouble, we should equip and we should enrich ourselves with the latest technology, that is
in the world, and that is in the platform, and prepare more and more and more and more to face the challenges posed by the artificial intelligence. Of course, we have lots of benefits we each one of us avail every day, but these are the certain challenges, like ma'am said, ChatGPT, but ma'am again provided us a hands-on training on how to use ChatGPT, how can you be a blogger, not only for your students, for with the same blog you can teach many, and how to use. So she explained about the flipped classroom concept, that you have put in the e-content, the academic content, what you are teaching, already you put it in your blog. When the student comes with the questions related with that blog, that is the questions related with that part of the syllabus, and it will be an interactive section, that is the teacher is answering their queries and equipping them. Earlier it was the teacher teaches, like ma'am said, teacher teaches and student listens and takes their whole homework in the home. But in the flipped classroom model, it will be the reverse, flipping it. That means already the student is from the blog of the teacher studying what she is going to teach tomorrow, and if that some portion is not yet understood, the next class the student can ask a query and clarify his doubts. So every day you are going to have new challenges every day, and with the more technology driven world we are in now. So FDPs like this definitely would encourage and motivate us, and definitely not only the motivation will drive us forcefully to use this new techniques and new methods. So once again, already earlier also I heard you twice, Dr. Lavanya, and today's talk was also extremely useful, beneficial for our participants. Once again, a hearty congratulations for delivering such a wonderful talk, and also for an impactful and very useful technique, and with the latest technique which you have provided to our participants on this platform. On behalf of Kamala Group of Colleges, especially the PG College of Kamala PG College and Kamala TT College, and also from the Guru Angad Dev Teaching Learning Center, MHRD, New Delhi, I express a hearty thanks and gratitude to you, Dr. Lavanya, and thank you. Thank you so much, ma'am. And the next speaker, or if you want to, Lavanya, if you want to provide and want to talk more about this ICT tools, earlier in the last section when I attended, you spoke about learning management system. That was another application, learning management system. So if you want to provide, or if you want to discuss about the learning management system, till 1 o'clock, I think the platform is for the interaction. And if you are ready, you can have an interaction with the participants physically also, online also. Otherwise, we can call Dr. A.K. Varmaji. Or shall we continue? If there is no interaction between the participants at the moment, can we invite Dr. A.K. Varmaji to deliver? Okay, ma'am. Are you ready to? Hello, Dr. Lavanya. Ma'am, are you ready to ready for an interaction? Okay. So, Dr. A.K. Varmaji, I would like to invite Dr. A.K. Varmaji from the same institute, IET, Dr. B.R. Ambedkar University, Agra. He is associated with this IET since last many years.
has many publications to his credit in national and international journals of repute. And like Dr. Lavania, he is also a technocrat as well as an academician. Both belong to the same institute. So I welcome Dr. A.K. Verma on behalf of our organizing team. Let me introduce our organizing team. Chief Patron of the FTP and Chairman Kamala Group of Colleges, Dholpur, Dr. RRL Sharmaji, co-patron of the FTP and Director Kamala TT College, Dholpur, Mr. Mandeep Sharmaji, co-patron of the FTP and Director Kamala PG College, Dholpur, Professor Rajesh Kumar Sharmaji, convener of the FDP and Principal Kamala PG College, Dholpur, Dr. P.S. Tiwari ji, coordinator of the FTP and Assistant Professor English, Kamala PG College, Dholpur, Dr. O.P. Upadhyay ji, co-coordinator of FDP and senior most faculty member in Kamala Group of Colleges, Dholpur, Dr. L.P. Sharma ji, and members of collaborating team, that is Guru Angad Dev Teaching Learning Center, MHRD, New Delhi, and all the participants. I welcome the next resource person for the fourth day, second session is Dr. A.K. Verma. Sir, we welcome you to this podium and you are also going to join and speak physically from Kamala Group of Colleges platform. So over to you. He is also associated with the Institute of IET, Engineering Technology, and he is working in the Department of Electronics and Communications. And he is also going to deliver a talk on ICT tools. These days, since our title was teaching learning methods in the past and in the present and in the future, that is the various aspects regarding with the teaching, learning and assessment methods we are covering so far. So today is the second session. We are going to hear from Dr. A.K. Verma from IIT Ambedkar University. I would request you not audible. Excuse me, sir. Play kindly. Yes. Oh, thank you. Now, sir, kindly switch on your mic. It's not audible online. So kindly switch on your mic, please. So kindly switch on your mic.
बहुत डिले है ये। हेलो, am I audible? Okay. So very good afternoon, everybody. I'm Dr. Ajay from Department of Electrical Engineering, IIT, Dr. B.R. Ambedkar University. So here I am to present on the technology tools for impressive teaching. So actually, my objective here is to make you aware with some technology tools that will help the teachers and students for making the teaching learning process effective. So in this presentation, I will go through some tools. So I will give some hands-on experience also. So let me show you the contents first.